Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. સર ઓનલાઈન લેક્ચર બંધ થઈ ગયા એવું સાંભળવામાં આવ્યું. अरे वो सिर्फ बताए कुछ कुछ स्कूल्स के लिए और स्पेसिफिक कॉलेज के लिए ही है, अपने लिए शायद से ही होगा. और वो भी आज से स्टार्ट हो गया है स्कूल का भी. पता नहीं भाई. Okay, so last time we have started a single degree of freedom damp vibration. Okay. So what is the difference between the single degree of free vibration and damp vibration? That we are using only here one damper. That is the main difference. If you use the damper, your one force that is added, that is known as a damping force Fd, and Fd is known as a Cx dot. Fd is equal to Cx dot. So our equation will be mx double dot plus Cx dot plus Kx is equal to 0. So I can say x double dot is equal to C by m plus K by mx is equal to 0. If you put this equation in a differential way, you can say d square x plus C by m dx plus K by m is equal to 0. And finally, you will find this equation. Now, this is the second order equation. So your roots will be d is equal to minus b plus or minus under root of d square minus 4ac upon 2a. If you put, you will get this equation. Now, after this equation, we want to convey this portion under root. Okay. So I can say let the damping ratio or damping factor zeta is equal to c by 2m whole square upon k by m. C by 2m whole square upon k by m. That is known as c by cc. If you put zeta, c upon 2m omega and c upon 2 under root km. Now I want c upon 2m and k by m. C upon 2m and k by m. So c upon 2m is equal to zeta omega n and k by m is equal to omega n square. So from that, we have another signify d12 is equal to minus zeta omega n plus or minus under root zeta omega n square minus omega n. Suppose your vibration is under damped, so your zeta less than 1. If your zeta is less than 1, then this whole term that will be negative. So I have taken out minus 1, that is common. Under root of minus 1, that is I. So if you have a plus or minus IB, this term is known as a damped natural frequency, omega d. If you have root a plus or minus ib, so your solution will be x is equal to e raised to minus zeta omega n t, a cos omega dt plus b sin omega dt. So finally you are getting this. X is equal to capital X e raised to minus zeta omega n t sin omega dt plus phi. Okay. So up to here last time we have. What is the meaning? For free vibration, we have only x is equal to x sin omega nt plus phi. Here is a damped vibration, so omega n is replaced by omega d, and one term is added is known as e raised to minus zeta omega nt. देखो, in a free vibration, your amplitude follows a sine curve, pure sine curve. But here, your amplitude follows a sine curve as well as your amplitude will reduce as time goes on, because it is a e raised to minus. E raised to minus is equal to 1 upon. So after each time period, your amplitude will be reducing and it tries to tends to 0. If your amplitude is 0, it means there is no vibration. So if any body vibrates, so that body, if it is under damped, that will try to regain its original position. So what is the amplitude? In previous test, our amplitude is only x for free vibration, but here we have amplitude x e raised to minus zeta omega and t. So here let it is the x0 because it follows the sine wave. Suppose it's my amplitude x0. Now after a one time period, my amplitude is reduced by e raised to minus zeta omega and t. That is x1. Again it is reduced by x2, and that comes to almost it is equal to 0. So that is the meaning of this equation, this solution. The meaning of this solution, that is important. What is the meaning of that solution? कि अगर आपका टाइम पीरियड जैसे ही चला जाता है तो आपका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी टर्म आ गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा टर्म है x इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव. दैट इज माय सॉल्यूशन. सपोज माय टाइम पीरियड इज 0. Time period is 0, it means I have t is equal to 0. If I put t is equal to 0, right? So that is my initial solution x0. T is equal to 0 put करोगे तो e raised to 0, that is 1.
0, that is sin phi. So I can get x sin phi. My x0 is equal to capital X sin phi. Now take a time period t, small t is equal to td. td is equal to one time period. ओके. तो क्या होगा, मेरा x1 होगा वन टाइम पीरियड के लिए, x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा t की जगह रखूंगा हम td sin ओमेगा dt प्लस 5. अब मुझे पता है टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा. टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा. Okay, but here it is a d, it means damped time period, so I can say here it is a omega d. But we know that what is omega d, that is omega n upon under root of 1 minus zeta square. Omega n under root 1 minus zeta square omega d. We have derived equation omega d. ओमेगा डी इज इक्वल टू डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो अगर मैं टीडी की जगह यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर रखूंगा तो क्या होगा ओमेगा एन दैट विल बी कैंसिल आउट. ठीक है. साइन टीडी की जगह क्या करना है मुझे 2 पाई बाय ओमेगा रखना है, तो ओमेगा डी यहाँ पे तो सिर्फ टीडी ही है तो 2 पाई बाय ओमेगा डी ही रख दो. तो ओमेगा डी दैट विल बी कैंसिल आउट साइन 2 पाई प्लस 5. हमें पता है ट्राइगोनोमेट्रिक्स में यूनिट सर्कल आता था एकम वर्तुल. तो साइन 2 पाई प्लस 5 क्या होता है साइन 5 होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 2 पाई प्लस 5. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज दैट विल बी पॉजिटिव. जितने भी आपके फंक्शन है सारे पॉजिटिव है. ऑल एस टी सी के ऑल एस टी सी नाम का कुछ चीज आता था ना आपको यूनिट सर्कल में. यस और नो. यस सर. सर मतलब ऑल एस टी सी के कंपेयर में यहाँ पे 2 पाई प्लस 5 मतलब क्या होता है 0 2 पाई 4 5 ऐसा आता है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है. देखो मान लो कि आपका कुछ सर्कल है इस तरफ का तो आपने 4 डिवाइड किए थे 4 भाग. यहाँ पे आता है 0. यहाँ पे क्या आता है पाई बाय 2. पाई बाय 2. यहाँ पाई. पाई. यहाँ 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2. यहाँ पे क्या आता है अगेन 2 पाई. 2 पाई. ऐसे रिपीट होता है. ठीक है. यहाँ पे हम लिखते थे ए ऑल. यहाँ पे लिखते थे हम एस. यहाँ पे टी. यहाँ पे सी. ऑल एस टी सी मतलब इन सारे कोऑर्डिनेट में ये फंक्शन है वो पॉजिटिव है. यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव है. यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है. यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव है. यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव है. तो आपको क्या करना है यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस 5 लिखा है 2 पाई प्लस 5 साइन 2 पाई प्लस 5. सो व्हाट आई कैन से साइन यहाँ पे 2 पाई है प्लस 5 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे पॉजिटिव हो गए. और जब भी इस लाइन के यहाँ आता है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता. यहाँ पे इस लाइन पे आते हैं तो आपका फंक्शन चेंज होता है. तो साइन 2 पाई प्लस 5 क्या होता है ओनली इट इज अ साइन 5. और यहाँ पे जो चीज होती है 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. इसको मैंने एक टर्म दिया उसको मैंने दिया डेल्टा. डेल्टा व्हाट इज डेल्टा. डेल्टा को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. इतना डिक्रीमेंट हर टाइम आएगा. कितना जितना ई रेज टू माइनस है माइनस जीटा ओमेगा ओमेगा dt जितना कुछ था ओमेगा एन टी डी इतना डिक्रीमेंट हर टाइम आता है. ठीक है. तो इसको कुछ मुझे टर्म देना है तो इसको मैंने नाम दिया है डेल्टा. ठीक है. लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके नाम दिया है. इस डेल्टा को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. क्यों लॉगरिथमिक क्योंकि ई रेज टू है. ठीक है. हम आगे देखेंगे क्यों लॉगरिथमिक. तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. उसकी वैल्यू क्या है क्योंकि ओमेगा एन दैट विल बी कैंसिल आउट विच में 2 पाई जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो ये था आपका जनरली लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट तक की सफर. अब देखो मैंने टाइम इज इक्वल टू टीडी लिया. अब मैं लेता हूँ टाइम इज इक्वल टू 2 टीडी. तो क्या होता है x इज इक्वल टू कैपिटल x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा टीडी की जगह क्या टाइम टी की जगह कितना लिया सेकंड टाइम पीरियड जब दूसरा ऑसिलेशन खत्म होता है तब 2 टीडी साइन ओमेगा डी टी की जगह 2 टीडी प्लस 5. तो x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा n 2 का 2 टीडी क्या है 2 पाई बाय ओमेगा डी. ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. साइन टीडी क्या है 2 पाई बाय ओमेगा डी. ओमेगा डी दैट विल बी कैंसिल आउट. तो बचेगा 2 2 4 पाई प्लस 5. अगेन साइन 4 पाई प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 5. यहाँ पे ओमेगा n दैट विल बी कैंसिल आउट. 2 बाहर निकालो 2 पाई जीटा अपॉन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा e रेज टू माइनस 2 डेल्टा. तो ऐसे आप करते ही जाओगे तो आपका x0 आएगा x sin 5. x1 कितना आया तो कि x e रेज टू माइनस डेल्टा sin 5. x2 कितना आया तो कैपिटल x e रेज टू माइनस 2 डेल्टा sin 5. x3 तो 3 डेल्टा sin 5. xn तो n डेल्टा sin 5. तो यहाँ पे अगर आप
सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है x0 x1 x2 x3, ये सारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का अगर आप रेशियो लोगे, मतलब कि x0 by x1 x1 by x2 x3 by x4, x0 by x1 क्या आएगा, दोनों का रेशियो होगा, e रेस टू डेल्टा आएगा। x1 by x2 करोगे तो भी e रेस टू डेल्टा आएगा, x2 by x3 करोगे तो भी e रेस टू डेल्टा आएगा, मतलब कोई भी करोगे आपका रेशियो सेम आना है डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा को बोलते हैं लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो ये जो रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है डैम्प वाइब्रेशन में, ठीक है। तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया कि मेरे को मान लो कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जाना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव रेशियो x0 by x1 into x1 by x2 x3 by x3, तो क्या होगा x1 x2 सारे कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ x0 by xn। अब मुझे पता है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो e रेस टू डेल्टा ही आता है, क्या कैसे e रेस टू डेल्टा e रेस टू डेल्टा e रेस टू डेल्टा e रेस टू n डेल्टा होता है, ठीक है। दोनों की तरफ मैं log ले लेता हूँ ln e बेस पे, तो log x0 by x1 ये तो 1 हो जाएगा, n डेल्टा आगे हो जाएगा, ठीक है। log e इज इक्वल टू 1, e बेस e इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे डेल्टा मिलता है 1/n ln x0 by xn, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ शो किया एम्पलीट्यूड्स का, देखो ये सिंपल सा जीटा इज लेस देन 1 के लिए था, ठीक है, जीटा इज लेस देन 1, ये था जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब अगर क्रिटिकल डैम्पिंग है तो सिंपल सा ऐसा हो जाएगा, जीटा लेस देन 1 है, जीटा ग्रेटर देन 1 है, ओवर डैम्प है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, थ्योरी का नाम है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्या नाम है, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम यहाँ तक हमने लिखा था, नीचे थ्योरी का नाम लिखो, एक्सप्लेन और डिराइव लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, डिराइव अथवा एक्सप्लेन लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, एक्सप्लेन और डिराइव लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आंसर में आप पहले तो फिगर ड्रॉ करो पूरी की पूरी, पहले फिगर ड्रॉ करो सब, ग्राफ ना सर। जैसे फिगर ड्रॉ करो, ये फिगर ड्रॉ करो, फिर आपका ये एम्पलीट्यूड वाला चीज आ जाता है। एम्पलीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं करना, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, देन 1 टाइम पीरियड td, सेकंड टाइम पीरियड 2td 3td, ऐसे x0 x1 x2 फाइंड करने हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है।
x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करो, x0 फाइंड करो, t इज इक्वल टू टी पॉइंट टीडी 1 टीडी फाइंड करो, x1 फाइंड करो। यहाँ पे t की जगह क्या रखना है, सिर्फ 0, तो 0 का अगर e रेस टू 0 हो जाएगा आपका 1 साइन t की 0 रेस टू साइन फाइव, तो आपका आंसर आएगा ओनली x0 इज इक्वल टू x साइन फाइव। देन क्या करना है, t 0 पुट किया, अब सेकंड टाइम पीरियड मेरा क्या आएगा, तो td एक टाइम पीरियड, सिंगल टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू टीडी पुट करोगे, तो आपने ये टीडी पुट किया, लेकिन मुझे क्या पता है टीडी बराबर क्या है, ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा डी, ओमेगा डी क्या है, तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो मैंने x ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टीडी है, टीडी की जगह मैंने वैल्यू यहाँ पुट की, साइन यहाँ पे 2 पाई रहेगा सिर्फ पाई, तो साइन 2 पाई प्लस पाई साइन फाई रहेगा, ये टर्म को मैंने डेल्टा नाम दिया, क्यों, इसको 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू x ई रेस टू माइनस डेल्टा sin phi, where delta is a logarithmic decrement, उसकी वैल्यू ये लिख लेना 2 pi zeta upon under root of 1 minus zeta square, that is known as a logarithmic decrement। इसको बोलते हैं डेल्टा। अब t इज इक्वल टू 2td रखो, t इज इक्वल टू 2td, तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज रखना है, लेकिन हमको मिलेगा e रेस टू माइनस 2 डेल्टा साइन फाई, x इज इक्वल टू कैपिटल x e रेस टू माइनस 2 डेल्टा साइन फाई। आप ये सारी चीजें रखोगे, x0 क्या आता है, x1 x2 x3 x4, લેવલ શું છે, લેવલ 1 તમે લખેલું ના ના એ નથી, એ ક્વેશ્ચન છે એનો વાંધો, x0 x1 x2 x3 अप टू xn। अब क्या करना है, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का एक इक्वेशन तो हमारे पास है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, लेकिन एम्पलीट्यूड के टर्म ने निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव रेशियो लेते हैं, तो जो भी सक्सेसिव रेशियो रहते हैं x0 बाई x1 तो e रेस टू डेल्टा ही आता है, x1 बाई x2 e रेस टू डेल्टा आता है, x3 बाई x4 e रेस टू डेल्टा आता है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड x0 बाई x1 x2 बाई x3 सारे सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के रेशियो, आपका एक ही आंसर आएगा e रेस टू डेल्टा। थोड़ा ऊपर करना। સર આ વસ્તુ શું છે લેવલ 1 લેવલ 2 વાળું? એ તો ક્વેશ્ચન છે, એનું કઈ લખવાની જરૂર નથી।
रेशियो ले लो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के। रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड x0 by x1 e raised to delta, x1 by x2, x2 by x3। अब डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, x0 by xn का रेशियो लेते हैं। तो x0 by xn मतलब इनिशियल जीरो टू फाइनल, पहले एम्पलीट्यूड कितना था और लास्ट में कितना है। तो मेरा जो भी सक्सेस एम्पलीट्यूड का रेशियो आता है ई रेस टू डेल्टा है, तो मेरा आंसर फाइनल आएगा ई रेस टू एन डेल्टा। जितने आपके एम्पलीट्यूड के है इतना एन रहेगा आपका। तो वहां से आपको डेल्टा फाइंड करके मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा डेल्टा का। ठीक है, ये रहा डेल्टा का इक्वेशन। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ln x0 by xn, दैट इज अ इक्वेशन फॉर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, एक्सप्लेन द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आप यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। સર થોડું ઓલું ઉપર બતાડો ને, પેલું લખેલું હતું તે રેશિયો ઓફ સક્સેસિવ એમ્પ્લિટ્યુડ. સર થઈ ગયું, નીચે કરી દો ને. ठीक है, लास्ट में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना कि अगर आपका जीटा 1 है तो क्या होता है, लेस देन 1 के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है।
Okay, draw graph. Yes or no? 1 मिनट सर. ठीक है सर. ओके, तो ग्राफ क्या कहना चाहता है? अगर आपकी सिस्टम ओवर डैम्प है, ओवर डैम्प मतलब जीटा इज ग्रेटर देन 1, आपके पास बहुत ज्यादा डैम्पिंग है, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगी, विल वाइब्रेट अपीरियोडिकली एंड इट वुड बी टेक इनफाइनाइट टाइम सो दैट एम्पलीट्यूड विल बिकम जीरो. मतलब कि यहाँ से आपका जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो ओवर डैम्प के लिए, तो ओवर डैम्प में क्या होगा, सिस्टम अपीरियोडिकली वाइब्रेट करेगी और यहाँ जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लेगी जीरो होने के लिए. अगर आपके क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डैम्पिंग फॉर व्हिच सिस्टम विल नॉट वाइब्रेट. मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग सबसे ज्यादा यूज है, वो कम टाइम में आपको वाइब्रेशन कम कर देता है, ठीक है. और ये तो हमारा है अंडर डैम्प रहेगा तो बहुत ही वाइब्रेट कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होते जाएगा, ऐसा करता रहेगा, ठीक है. तो ये कहना चाहता है कि जनरली क्रिटिकल डैम्पिंग ही यूज करते हैं. हमें पता है कि इसमें तो हमें लगता है कि अगर हम ओवर डैम्प करते तो हमारे लिए अच्छा ना, बहुत ज्यादा डैम्पिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओवर डैम्प करोगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा कि वो जीरो होगा, बहुत धीरे धीरे से ऐसे स्लो डाउन होगा. क्रिटिकल डैम्प करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. तो जनरली क्रिटिकल डैम्पिंग इज द smallest which will smallest possible damping for which system will not vibrate at all. So that is the damping vibration. यहाँ तक लिख लो, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना. सर ये जूम हो गया है, क्या हुआ? सर ये जूम हो गया बहुत. क्या जूम हो गया? नहीं भाई नहीं हुआ है, सब बराबर है तू. तो मेरे में क्यों दिख रहा है फिर ऐसा? अरे कोई स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दो ना यार, मेरे को नहीं दिख रहा बराबर. मैं बोलता हूँ, लिख, इन ओवर डैम्प सिस्टम, in overdamp system the system will vibrate, in overdamp system the system will vibrate aperiodically aperiodically and in overdamp system the system will vibrate aperiodically and it would take and it would take infinite time and it would take infinite time so that amplitude will become zero, so that amplitude will become zero. Second point,
critical damping is the smallest critical damping is the smallest possible damping. Critical damping is the smallest possible damping for which system will not vibrate at all. System will not vibrate at all. So this is your damp vibration. ओके पहला वाइब्रेशन हमारा फ्री वाइब्रेशन था, दूसरा डैम था, अब हम फोर्स वाइब्रेशन है। लेकिन उससे पहले हम जैसे फ्री वाइब्रेशन किया उसके बाद हमने एक दो लेक्चर तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वैसे ही यहाँ पे हम फोर्स वाइब्रेशन देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉरी डैम वाइब्रेशन देख लिया पूरा, उसके न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे, फिर हम जाएंगे फोर्स वाइब्रेशन पे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ है न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखो लिस्ट ऑफ इक्वेशन फॉर डैम्प वाइब्रेशन। कितने इक्वेशन यूज होंगे, लिखो लिस्ट ऑफ इक्वेशंस फॉर डैम्प वाइब्रेशन। लिस्ट ऑफ इक्वेशंस फॉर डैम्प वाइब्रेशन, ठीक है, लिस्ट ऑफ इक्वेशन फॉर डैम्प वाइब्रेशन। चलो पहला इक्वेशन लिखो है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कि जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 लिख लिया, यस और नो? हेलो यस यस सर। सर। ओके सेकंड इक्वेशन लिखो जीटा इज इक्वल टू c अपॉन cc। जीटा इज इक्वल टू c अपॉन cc इज इक्वल टू c अपॉन 2m ओमेगा n इज इक्वल टू c अपॉन 2 अंडर रूट km। ये इक्वेशन पूरा, ये इक्वेशन पूरा लिखो। ओके ये इक्वेशन देन थर्ड इक्वेशन लिखो ओमेगा d इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन लिखो आप ये वाला, ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रहने चाहिए सारे। ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देन लिखो ये एम्पलीट्यूड स्मॉल x is equal to capital X e raised to minus zeta omega n t sin omega dt plus phi। X is equal to X e raised to minus zeta omega n t sin omega dt plus phi। लिख लिया, यस और नो? यस सर। एम्पलीट्यूड लिख लेना, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू x e raised to minus zeta omega n t। एम्पलीट्यूड x e raised to minus zeta omega n t। क्लियर? ओके ना, लिखो नाउ logarithmic decrement delta is equal to 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square। logarithmic decrement delta is equal to 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square। logarithmic decrement delta is equal to 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square। और logarithmic decrement ही का दूसरा इक्वेशन ये आ रहा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n ln x0 बाय xn। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n
ln x0 by xn. लिख लिया? Yes, sir. बाकी है किसी को लिखना? No. No, sir. Okay. Now, okay. सबके कैमरा ऑन, फटाफट कैमरा ऑन सबके. चिंतन थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहन भाई, नंगा घूम रहा. ठीक है, बॉडी दिखाने का. यहाँ किसको तो बॉडी दिखाएगा अपनी? ના સર સવાલ હમણાં પડી હજી નાયો નહીં એટલે હજી હમણાં પડીને આવ્યો नहीं. ओके चलो चीते फटाफट जितने भी इक्वेशन तूने लिखे है वो रिवाइज कर फटाफट. पहले म्यूट से अनम्यूट कर. पहलो जो mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0. हेलो. हाँ हाँ यस यस बोल. बीजू जीटा जीटा इज इक्वल टू c by cc इज इक्वल टू c by 2m ओमेगा n અને c by 2 अंडर रूट km. અને બીજું છે ઓમેગા d ઇઝ ઓમેગા n અંડર રૂટ 1 પ્લસ જીટા 1 સ્કેલ. એને શું કહેવાય? ये શું ઓમેગા બોલ તો ઓમેગા ડી વાળું ઇક્વેશન ફરીથી. ઓમેગા d ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા n અંડર રૂટ 1 માઇનસ જીટા સ્ક્વેર. ઓકે ડેમ્પિંગ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી. ઓકે પછી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ x ઇન્ટુ e રેઝ ટુ માઇનસ જીટા ઓમેગા nt ઇન્ટુ સાઇન ઓમેગા dt પ્લસ 5. ઓકે then amplitude is equal to capital S e raised to minus zeta omega nt. yes then પછી longitude Logarithmic decrement decrement. tau decrement is equal to 2 pi zeta divided by under root 1 minus zeta 1 square. બીજું ઇક્વેશન છે તે 1 by n ln x0 by xn. ओके चलो सोवाणी फटाफट रिवीजन જેટલા ઇક્વેશન લખ્યા है. mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0. પછી zeta इज इक्वल टू c by 2m omega n is equal to c upon 2 root km. Omega d is equal to omega n into under root 1 minus zeta square. Damping natural frequency matter. Amplitude small x is equal to capital X into e raised to minus zeta omega nt into sin omega dt plus 5. Amplitude is equal to capital X into e raised to minus zeta omega nt. Delta is equal to 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square. Logarithmic decrement. And delta is equal to 1 upon n ln x0 by xn. ओके धड़ो mx double dot plus cx dot plus kx is equal to 0. Second, zeta is equal to c by cc, that is equal to c by 2m omega n equal to 2 upon plus c upon 2 root km. Third, omega d equal to omega n under root 1 minus zeta square. Fourth, x equal to capital X into e raised to minus zeta omega nt sin omega dt plus 5. Fifth, amplitude is equal to capital X e raised to minus zeta omega nt. Sixth, logarithmic decrement equal to delta equal to 2 pi zeta upon 1 minus zeta square. अंडर रूट 1 माइनस zeta square. Under અને delta equal to 1 upon n ln x0 upon xn. ओके कश्यप
Sir, mx double dot plus cx dot plus kx equals to 0. Then d12 equals to minus c upon 2m plus or minus under root c upon 2m whole square minus k by m. Damping rotation equal to zeta equal to c upon 2m omega n, which is equals to c upon 2 under root km. Then w omega d equals to w omega n into under root 1 minus zeta 1 square, that is damped natural angular frequency. Then we got the solution, that is x equals to e raised to minus omega zeta 1 omega n t into capital X sine into omega dt plus 5. Then angular amplitude equals to e raised to minus zeta omega n t. Then delta equals to 2 pi zeta upon 1 of under root 1 minus zeta square. Delta equals to 1 by n ln x0 by xn. Kiran. सर पहला है mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एक्स के एक्स इज इक्वल टू 0. दूसरा है जेटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी इज इक्वल टू सी अपॉन 2 एम हो गया आवाज आ रही है ओमेगा हेलो सबको आवाज आ रही है हरी हेलो किरण? सर हाँ सर ના आपकी आ સર रही है આવે सर છે. ના સર હરી નહીં આવે છે. सर आगे बोलो कि नहीं बोलो? हाँ बोल बोल. हाँ सर तो हम तीसरे पे जाते हैं सर. वो है ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस zeta square, that is damped natural frequency. We have amplitude is equal to capital X E whole raised to minus zeta W N T. फिर आता है logarithmic decrement, that is delta is equal to 2 pi zeta upon whole under root of 1 minus zeta square. फिर delta is equal to 1 upon n ln whole x0 upon n. ओके. डीके. Hello. ओके हेलो. हाय. Hello. हाँ बोल ने भाई. हेलो हेलो क्या नो करे. सर पहला mx डबल डॉट प्लस cx तो फिर से प्लस kx इक्वल टू 0. फिर से दूसरा है वो ये सर q1 इक्वल टू c अपॉन डबल c इज इक्वल टू c ये क्या सी अपॉन डबल सी? हाँ सी अपॉन सी सी बोल दे इसको. हाँ c अपॉन cc इज इक्वल टू c अपॉन 2mw. डब्ल्यू नहीं ओमेगा है वो. ओमेगा सॉरी ओमेगा c अपॉन 2 अंडर रूट 1 cm. फिर से कौन सा हो गया फिर wd इज इक्वल टू WD again. ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर. फिर से x इज इक्वल टू x e raised to माइनस बीटा ओमेगा n t ब्रैकेट साइन ओमेगा प्लस थीटा. फिर एम्पलीट्यूड वाला है थीटा इज इक्वल टू लॉगरिथम डिक्रीमेंट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डीटा अपॉन जीटा नहीं जीटा. 2 पाई जीटा. 2 पाई जीटा बोलते हैं इसको. जीटा. हाँ डीटा. तो अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. फिर जीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन m. फिर lm. फिर xo अपॉन एक्शन. कुछ भी तूने, मुझे ऐसा लगता है कि तूने कुछ किया नहीं है भाई. एक्स ओ बोलता है. एक्स ओ क्या होता है? नहीं वो तो लिखा अभी मुझे दिख रहा है भाई, लेकिन तेरी टर्मिनोलॉजी तो कुछ डिफरेंट ही आ रही है. ठीक है. एक्स ओ ओमेगा डी डब्ल्यू डी. डब्ल्यू क्या होता है? प्रजापति. mx डबल डॉट प्लस cx प्लस kx इज इक्वल टू 0. एक्स नहीं mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx. हाँ kx इज इक्वल टू 0.
સેકન્ડ ઇક્વેશન છે zeta is equal to c by 2m omega n is equal to c by 2 under root km. થર્ડ ઇક્વેશન છે ડેમ્પ નેચરલ ફ્રીક્વન્સીની ઓમેગા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા એન અંડર રૂટ 1 માઇનસ ઝીટા 1 સ્ક્વેર. ફોર્થ ઇક્વેશન છે એમ્પ્લિટ્યુડની સ્મોલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એક્સ ઇન્ટુ e રેઝ ટુ માઇનસ ઝીટા 1 ઓમેગા એન ટી ઇન્ટુ zeta 1 સાઇન નથી, ખાલી zeta છે. ઓમેગા Only zeta, that is not zeta 1. X is equal to x હા e raised ઝીટા to minus zeta omega nt. હા ઝીટા ઓમેગા એન ટી સાઇન ઓમેગા ડીટી પ્લસ 5 અને એમ્પ્લિટ્યુડની બીજી ઇક્વેશન છે એક્સ ઇન્ટુ e રેઝ ટુ માઇનસ ઝીટા ઓમેગા એન ટી. પછી ફિફ્થ ઇક્વેશન છે લોગેરિથમિક ડિક્રીમેન્ટની ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ઝીટા ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝીટા સ્ક્વેર. Under root. અને બીજી છે ડેલ્ટા ઇઝ હા અંડર રૂટ અને બીજી છે ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન n ln x નોટ બાય xn. Okay. Mr. Prasad. m mx double dot plus c h dot plus kx equal to 0. Zeta 1 is equal to c by c0 is equal to c by 2 m omega n is equal to c by 2 under root k mn. Omega d is equal to omega n under root 1 minus zeta 1 square. फिर x small x is equal to capital X e raised to zeta 1 omega nt sin omega dt plus 5. एम्पलीट्यूड की है फिर x is equal to नहीं x e omega e raised to zeta omega nt. फिर ये डेल्टा is equal to 2 pi zeta 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वो 1 zeta माइनस 1 जीटा नहीं है भीम, सिर्फ zeta है. zeta 1 क्या होता है? 2 pi zeta 1 है. जीटा ठीक है सर. डेल्टा इक्वल टू 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर. फिर डेल्टा इक्वल टू 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर. फिर ये लास्ट वाला डेल्टा इक्वल टू 1 बाय n ln x नॉट बाय xn. Okay. Okay. Bodybuilder, Mr. Chintan. સર આપણે Oh, આપણે mx double dot plus c x dot plus kx equals to 0 પછી delta 1 is equals to c by c is equals to c upon 2m 2m omega n is equals to c upon 2 root km. delta d delta नहीं zeta के भाई. delta n root हाँ zeta root n minus 1 minus delta 1 square. X is equals to x small x zeta omega and t bracket માં sin delta dt plus omega delta counts પૂરો bracket પૂરો. પછી x પછી small x into delta omega and t. Theta is equals to 2 pi delta 1 in root root 1 minus delta 1 square. Theta is equals to 1 by n ln upon x0 upon xn. Okay. Nisar. mx double dot plus cx dot plus kx equals to 0. Zeta equals to c by cc equals to c by 2m omega n equals to c by 2 root km. Omega d equals to omega n into root 1 minus zeta square. Small x equals to capital X into e raised to minus zeta omega nt into sin omega dt plus 5.
amplitude equals to capital X into e raised to minus zeta omega n t. Delta equals to logarithmic decrement delta equals to 2 pi zeta upon root 1 minus zeta square. Delta equals to 1 upon n into ln x0 by xn. Crooks. Crooks. એક મિનિટ મ્યુટ હતું mx dot plus c mx double dot plus cx dot plus kx equal to 0, zeta equal to c upon cc equal to c upon 2m omega n equal to c upon 2 under root km, omega d equal to omega n under root 1 minus zeta square, small x equal to capital X into e raised to minus zeta omega n t sin omega dt plus 5 m equal to x e raised to minus zeta omega n t. Delta equal to 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square. Delta equal to 1 upon n into ln x0 upon xn. Okay. Chalo. Thank you all of you. We will meet on tomorrow. Okay. Bhavesh is absent, no doubt.